Very good evening to all the students. Dear students, today we are going to discuss the first chapter of Footprints Without Fate, a triumph of surgery written by Mr. James Herriot. Now, dear students, do you know the meaning of the word triumph? The word triumph means victory. Surgery, as you all know, means operation. So, in this chapter, we are going to read about a triumph over surgery. Before I begin explanation of this chapter, let me tell you something about the author, the writer, Mr. James Herriot. Dear students, the real name of Mr. James Herriot was James Alfred White. Later he got the pen name as James Herriot. Mr. James Herriot was born on 3rd of October in 1916 in Sunderland in United Kingdom. It means England. He was a British veterinary surgeon as well as a writer. Between 1930 to 1950, he wrote a series of 8 books on animals and their owners. He wrote about animals and the way they are treated in modern day world by their owners in his books. He died on 23rd February 1995 in Thurlby in United Kingdom. Now let us begin today's explanation. There are 3 main characters in this story, a triumph of surgery. One of the characters is Tricky, who is a small dog. The other one is Mrs. Pumphrey, who is the owner of that small dog. And the third character is the writer of this chapter, Mr. James Herriot, who is the narrator also. So he is narrating this story. ये कहानी पूरी जो है उन्होंने ही नरेट की है मीन्स उन्होंने ही सारी कहानी को बताया है. लिखा भी उन्होंने ही है, बताया भी उन्होंने ही है. Dear students, this story focuses on a very common theme. The theme of this chapter is very simple, but it has a vast significance for all of us in our day-to-day life. It is good that people take care of others, but over-caring sometimes lead to negative consequences. Sometimes extra caring leads to negative consequences. In this chapter also, we are going to learn about a small dog and her over-caring owner, Mrs. Pumphrey. Let us begin the explanation. In this chapter, Tricky is a very small dog. So he is one of the characters. His owner, Mrs. Pumphrey, she pampers him very much. Pampers means she takes care of the dog very much. She tries to give him as much comfort as she can. पैम्पर का मतलब होता है जब हम केयर करते हैं किसी का, हम ये कोशिश करते हैं कि उसको जितना कंफर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हम प्रोवाइड करें. सो मिसेस Pumphrey used to take care of that small dog, Tricky, but she was over caring in nature. The only problem she had was she was extra caring. And how that extra caring nature of hers leads to negative consequence, we are going to learn about in this chapter. Dear students, Mrs. Pumphrey used to feed that small dog with cakes and biscuits. Biscuits खिलाया करती थी, cakes खिलाया करती थी. She used to feed the little dog with such food which were full of fats. ऐसा भोजन दिया करती थी जिसमें फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी. Mrs. Pumphrey gave him cod liver oil and Horlicks. Horlicks, जी हाँ, जो बच्चों को दिया जाता है, मिसेस Pumphrey उस कुत्ते को प्रोवाइड किया करती थी, ट्रिकी को प्रोवाइड किया करती थी. Now what is cod liver oil?
ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉर्ड। कॉर्ड से जो तेल निकाला जाता है मार्केट में वो आराम से उपलब्ध है, आप ग्रोसरी स्टोर्स में पता कर सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। कॉड एक प्रकार की मछली होती है, जब उससे तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो कॉड लिवर ऑयल बनता है। इट इज़ गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, इट मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी ओनर थी मिसेस पम्फ्री, वो ट्रिकी को कॉड लिवर ऑयल भी दिया करती थी। शी यूज टू गिव हिम वाइन, वाइन प्रोवाइड किया करती थी। दिस ऑल मेड ट्रिकी लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। द डॉग लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। क्या होता है, आप इन बातों को जनरली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा फैट खाता है, आप ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करोगे तो शरीर में वो फैट स्टोर होगा, जब वो फैट स्टोर होगा तो आप में मोटापा बढ़ेगा। नाउ व्हेन यू विल बिकम फैटी, व्हेन यू विल बिकम फैट, you will get lazy. Same thing happened to the dog. The dog became lazy. ट्रिकी जो था वो एकदम से आलसी बन चुका था, फूल गया था, फैट्स को खाते खाते वो एकदम से फूल गया था। इट लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोट मीन्स फूला हुआ, सॉसेज एक प्रकार का फ्लफी आइटम खाने का। तो इस तरीके से उसका अपीयरेंस हो गया। तेल से बनी चीज़ों को ज़्यादा खाता था तो फूल सा गया था, मोटा हो गया था, जिसकी वजह से वो आलसी बन चुका था। ही केप्ट लाइंग ऑल द डे ऑन द कारपेट। सारा दिन कारपेट पे पड़ा रहता था। ही नेवर रिफ्यूज टू टेक फूड। अगर उसके पास 24 घंटे भोजन, अगर उसे 24 घंटे भोजन दिया जाता तो वो 24 घंटे भोजन करता। उसे ऐसी आदत लग गई थी। बट वन डे ही गॉट इल। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ का अत्यधिक बहुत बेकार होता है, किसी ना किसी दिन उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। एक दिन ऐसे ही हुआ। ट्रिकी गॉट इल बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। एकदम से वो बीमार पड़ गया। वॉट हैपेंड? ऑल ऑफ ए सडन ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। ही वॉमिटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स। कई बार उसने उल्टी कर दी। इट वॉज ओनली द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग। ये आपको पहले मैं बता दूं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया करता था, जैसा कि मैंने कहा। तो ओवर ईटिंग की वजह से एक दिन उसने खूब वॉमिटिंग की। एंड आई टोल्ड यू दैट हिज ओनर, हिज केयर टेकर मिसेस पम्फ्री वॉज एक्स्ट्रा केयरिंग। शी पैम्पर्ड हिम वेरी मच. She got wonder-struck. She felt very much anxious about the dog. एकदम से वो चिंतित हो गई कि अब क्या होगा। ट्रिकी क्या और जी पाएगा या उसकी मौत हो जाएगी? She felt very much anxious. बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी वो। When she thought that his condition is serious, his condition is critical, she decided to call Mr. James Herriot, who was the family doctor of Mrs. Pumphrey. जब उन्हें लगा कि ट्रिकी की बीमारी गंभीर है, ठीक है, उसने वॉमिटिंग किया है लेकिन उसका कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जेम्स हेरियट को बुलाएंगी। जेम्स हेरियट उनके एक फैमिली डॉक्टर थे। फैमिली डॉक्टर वो होते हैं जो आपके घर का इलाज किया करते हैं, समय समय पर आकर के वो इलाज किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जेम्स हेरियट वॉज द फैमिली डॉक्टर ऑफ मिसेस पम्फ्री। सो शी कॉल्ड मिस्टर जेम्स हेरियट, ही केम ऑल्सो। उन्होंने कॉल किया, जेम्स हेरियट वहाँ पर पहुँचे भी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, जेम्स न्यू ऑल दीज थिंग्स, he knew about all these things that one day it will happen. उन्हें इस बात का अंदाज़ा पहले ही लग चुका था कि एक न एक दिन ये होगा ही होगा। ट्रिकी को इस कंडीशन में आना होगा, क्योंकि वो अक्सर आया करते थे, छोटी छोटी इलाजों में वो आया करते थे। फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली में उनका आना जाना था। वो देखा करते थे कि कैसे
मिसेस पम्फ्रे कह सकते हैं कि फैटी फूड प्रोवाइड किया करती थी, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि किसी ना किसी दिन ये कुत्ता बीमार तो ज़रूर पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। ही हैड ऑलरेडी मेड हिज प्लान्स, उन्होंने पहले से ही सारी योजनाएं बना ली थी कि करना क्या क्या होगा। सो व्हेन ही रीच्ड होम ऑफ मिसेस पम्फ्रे, he told her that the dog needs to be admitted in hospital for a fortnight. उन्होंने मिसेस पम्फ्रे से साफ कहा कि इस कुत्ते को 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ही विल बी परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट मिसेस पम्फ्रे, शी फेल्ट वेरी सैड, शी फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड। उन्हें अत्यंत दुख हुआ कि उनके परिवार का एक हिस्सा आज घर से बाहर जा रहा था। द एंटायर हाउस लुक्ड डिप्रेस्ड। द डिपार्चर ऑफ ट्रिकी वॉज वेरी पैथेटिक। द डिपार्चर ऑफ ट्रिकी वॉज वेरी मिजरेबल। दयनीय था, वहाँ का कंडीशन देखने लायक नहीं था। वॉट वॉज द कंडीशन? Everyone was weeping in one or the other corner. घर के एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में सब लोग छिप छिप कर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो घर का एक सदस्य दूर जा रहा हो कहीं। But what happened thereafter? The maids were putting Tricky's things in James' car. ट्रिकी की सारी चीज़ों को जो है मिसेस पम्फ्रे के सर्वेंट्स कार में रख रहे थे। एवरीवन वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था वहाँ पर। फाइनली द डॉक्टर टुक द डॉग अवे इन हिज कार फॉर सर्जरी। फाइनली वहाँ से जेम्स हैरियट ट्रिकी को लेकर के निकलते हैं। व्हेन हैरियट रीच्ड हिज होम, ही वॉज सराउंडेड बाय हिज हाउस होल्ड डॉग्स। जैसे ही जेम्स हैरियट अपने घर पहुँचे तो वहाँ जो उनके पालतू कुत्ते थे उन्होंने ट्रिकी को घेर लिया। दे स्निफ्ड ट्रिकी बट शोड नो इंटरेस्ट इन हिम। कुत्तों की आदत होती है, वो सूंघते हैं आकर के। ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही ट्रिकी वहाँ पर गया, दे स्निफ्ड हिम, स्निफ किए, सूंघने का प्रयास किए, बट दे शोड नो इंटरेस्ट इन हिम। लेकिन उन कुत्तों ने भी ट्रिकी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ही वॉज वेरी लेजी, he was not at all active. Till 2 days, Harriet did not give him anything to eat. 2 दिन तक डॉक्टर ने ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। He gave him a lot of water to drink. सिर्फ एक चीज़ प्रोवाइड किया उन्होंने, खूब पानी पिलाया उन्हें ट्रिकी को। Then the doctor started giving him light food. उसके बाद उन्होंने हल्के भोजन से शुरुआत की। ऐसा नहीं था कि मिसेस पम्फ्री की तरह वो ऑयली फूड दे रहे थे, फैटी फूड दे रहे थे। नहीं, उन्होंने लाइट फूड से शुरुआत किया। ही गेव नो मेडिसिन। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं, या हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अब किसी लायक नहीं रह गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक अंदर की फीलिंग हम में जो होती है वो सामने आती है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बेचारे बनने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहे। अगर आप में एनर्जी है तो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत रेयर हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, रोग मानने से बढ़ता है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं बीमार हूँ, तो डेफिनेटली आप बीमार हैं। आप बीमार नहीं हैं तो भी बीमार हो जाएंगे। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि रोग है तो रोग का उपचार करना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट इट्स रेमेडी। हमें उसके रेमेडी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर उस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ था। ही वोमिटेड ओनली बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। सिर्फ अत्यधिक भोजन करने की वजह से उसने उल्टी किया। ओनर को लगा कि ये तो बचेगा नहीं। डॉक्टर को कॉल किया उन्होंने। डॉक्टर
भली भांति जानते थे इन सारी चीज़ों को। उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगाया था कि ये तो होगा ही, आज नहीं तो कल होना ही है। ऐसा हुआ। ही ऑलरेडी मेड हिज प्लान्स, ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पहले से वो प्रिपेयर थे और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फर्स्ट 2 डेज उन्होंने थोड़ा भी भोजन नहीं दिया, सिर्फ प्रोवाइड किया पानी। येस, ही गेव अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो। पानी की क्या महत्ता है इसके बारे में हर इंसान को जानना चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, you know, a single drop of water can save as many as 50 lives. It is hard to believe, I know that, but it is true. It is a fact. पानी का एक बूंद 50 जीवन बचा सकता है पूरी दुनिया में। So you can understand the importance of water. तो उन्होंने पानी दिया, भोजन नहीं दिया। Thereafter he started feeding the dog with light food. उसके बाद उन्होंने लाइट फूड देना शुरू किया, हल्के भोजन से शुरुआत किया। एंड रिजल्ट वॉज ऑल्सो शोन, परिणाम भी दिखने लगा था। वॉट हैपेंड, यू नो, ट्रिकी हु वॉज वेरी लेजी नाउ स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स। अब वो इंटरेस्टेड दिख रहा था, उसमें स्फूर्ति आई थी, उसमें एनर्जी दिख रहा था। नाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द हाउस होल्ड डॉग्स ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके साथ उसने खेलना शुरू कर दिया था। ही एन्जॉयड बीइंग रोल्ड ओवर। रोलिंग करते हैं, आपने देखा होगा, कुत्ते जो है ज़मीन पर लेट जाते हैं, यहाँ से वहाँ वो रोल करते हैं। सो ही स्टार्टेड रोलिंग ओवर। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द गैंग। उन हाउस होल्ड डॉग्स का वो मेंबर बन चुका था। एट होम ही हैड ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज, बट एट दी सर्जरी ही वॉज फुल ऑफ एक्सरसाइजेस। एक और सीख जो हमें इस चैप्टर से मिलती है वो ये कि इंसान को किसी न किसी फिजिकल एक्सरसाइज से जुड़ा रहना आवश्यक है। कहा गया है कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी स्पोर्ट्स को आजीवन फॉलो करना होगा। कोई भी हो सकता है वो स्पोर्ट्स। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो लंबे समय तक उसमें लगे रहिए, थोड़ा समय निकालिए खेलने के लिए। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है then you should definitely play badminton because it makes you fit and healthy. क्या होता है आप समझ सकते हैं कि फैट एक्यूमुलेट कैसे होता है। हमारे अंदर चर्बी आती कहाँ से है? सोचने की बात है। हम भोजन करते हैं, कभी कभी हम ऑयली फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स हमारे शरीर में स्टोर होता है। अब वो फैट्स को गलाना है, वो स्टोर हो जाएगा तब तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके शरीर को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर उसको हमें कंट्रोल करना है तो उसका सबसे बड़ा इलाज क्या है? वी कैन डू एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप रोग से दूर रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। एट होम व्हाट हैपेंड टू ट्रिकी? ट्रिकी नेवर हैड एक्सरसाइजेस। कभी उसने व्यायाम नहीं किया। इट नेवर प्लेड ऑल्सो, ही नेवर प्लेड, कभी नहीं खेलता था। But here at the surgery, he was doing exercise also along with the other household dogs. As he was accompanied by the other dogs, he was full of energy. क्योंकि उसके आसपास और भी लोग थे, उसे अच्छा महसूस हो रहा था, उसे कंपनी मिल रही थी, उसे ये लग रहा था कि मेरे आसपास भी लोग हैं। जब लोग हमारे साथ होते हैं तो हमें जीवन में कुछ करने का मन करता है। वो कहते हैं ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। यहाँ कुत्ते की बात है लेकिन मैं मनुष्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कितने दिन तक वो अपने आप को सेपरेट कर सकता है सारी दुनिया से? नहीं हो सकता। कभी ना कभी किसी मोड़ पर उसे समाज के साथ इंटरेक्ट करना होगा, और इंटरेक्शन आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको अगर शेयर करते हैं तो वो कम होता है। लेकिन अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको अपने मन में दबाए रखें तो कहीं ना कहीं वो और गहरा होता चला जाता है। तो ये जीवन के हर मोड़ पर ये सारी बातें हमारे लिए लागू होती हैं। इन पर हम लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
सो व्हाट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के रूप में क्या प्रोवाइड किया? कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्टिविटीज़। डाइट भी था तो बड़ा कंट्रोल्ड था, एक्सरसाइजेज बराबर हो रहे थे। कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्सरसाइजेज मेड हिम एक्टिव। एक्टिव हो गया वो कुत्ता, बिल्कुल एक्टिव हो गया। दूसरी तरफ मिसेस पम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। बहुत परेशान थी कि ट्रिकी किस हालत में होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। बट द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ही वॉज गेटिंग बेटर। लेकिन जेम्स हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को फ़ोन पर बताया कि वो दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जा रहा है। वेरी सून ही इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली ऑल राइट। दिस मेड हर थिंक दैट ही हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कही कि वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि इसका मतलब है कि इस कुत्ते के साथ सर्जरी की गई है, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता, तो बहुत जल्द वो घर आ जाता। घर नहीं आ रहा है, 15 डेज की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं मिसेस पम्फ्रे केम टू नो दैट द डॉग अंडरवेंट अ सर्जरी। उस कुत्ते के साथ एक सर्जरी हुई है। सो शी गॉट एंशियस, फिर से थोड़ा चिंतित हुई। शी सेंट 2 डजन्स ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर हिम डेली। अब फिर से आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस चीज़ से डॉक्टर ने परहेज़ किया, फिर से वही चीज़ें प्रोवाइड की जाने लगी। बट द डॉक्टर वॉज, आई शुड से, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत इंटेलिजेंट थे वो। उन्होंने उन सारी चीज़ों को स्वयं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खा लिया। ही नेवर गेव दोज एग्स, वाइन एंड ब्रांडी टू द डॉग, क्योंकि ये सारा जड़ खाने की वजह से ही तो हुआ था। ये सारा जड़ जो ये जो सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। अगेन मिसेस पम्फ्रे वॉज ट्राइंग टू फीड द डॉग with a lot of food. So the doctor decided not to give those round eggs, not to give wine and brandy to the dog. In fact, he ate all those things along with some friends, and very soon the dog got recovered. और बहुत जल्द ऐसा देखने को भी मिला कि वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। After a fortnight, Mrs. Pumphrey came to collect Tricky. 15 दिन के बाद मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर के पास आई ट्रिकी को ले जाने के लिए। She was tense and worried. बहुत चिंतित थी, बहुत confusion बना हुआ था कि what was the condition of Tricky? Was he critical? Was he recovering? बहुत सारा प्रश्न उनके मन में चल रहा था। She did not hope that he was all right. उनके मन में तो कोई संदेह नहीं था कि कुत्ता ठीक नहीं होगा। बट वेन शी केम एंड सॉ द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, शी वॉज वेरी हैप्पी। और इतना ही नहीं, जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्रे को देखा, ही जम्प्ड एट हर। एकदम से खुशी के मारे वो कूद गया वो मिसेस पम्फ्रे के ऊपर, अपने मालकिन के ऊपर। शी सेड that it was a victory of surgery. It was Mrs. Pumphrey who said that it was a victory of surgery. और यहीं से इस चैप्टर का टाइटल बना कि कैसे एक सर्जरी को जीत लिया गया, कैसे एक ऐसे कुत्ते को जिस पर उसके ओनर ने ये सोच लिया था, ये मान लिया था कि कुत्ता रिकवर नहीं करने जा रहा है। He may die also. After a fortnight, that dog got completely recovered, and that is why Mrs. Pumphrey, the owner of Tricky, said that it was a triumph of surgery. और तभी इस चैप्टर का टाइटल बना Triumph of Surgery. So dear students, this was the summary of this chapter. I hope you understand. I will come up with rest of the chapters later. Thank you very much. Thanks a lot.